1 2 3 4। एजुकेशन एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। भीम क्रांति लेके आई भारत दी मजबूरी है। जुड़ो संघर्ष करो। एजुकेशन एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। भीम क्रांति लेके आई भारत दी मजबूरी है। बन जावे जिन्हों में सलामी तोपा दे कोई ऐसा शेर जवान बने किसी ते निर्भर ना रहो। एजुकेशन एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। भीम क्रांति लेके आई भारत दी मजबूरी है। हर पासे जित है जित होवे कोई मुंह ना वेखे हारा दा। फुल टहके मैं के जग अंदर गुलजारा यती बहारा दा। हर पासे जित है जित होवे कोई मुंह ना वेखे हारा दा। फुल टहके मैं के जग अंदर गुलजारा यती बहारा दा। गुलजारा ते बहारा दा। कह रत्तो पिंड रंधावे दा सत सुरा दे मिठी तान बने। भारत माँ के लिए हर सांस रहे। भारत माँ के लिए हर सांस रहे। First, I and my friend Shifali wishing you a happy Republic Day. Good morning to the respected Baba and all my dear friends. Today is a very auspicious day. Today we all are gathered here to celebrate 70th Republic Day of India. We all know why do we celebrate Republic Day, but it's time to request to my friend Gurpreet to throw some light upon the importance of this very day. Please, Gurpreet. Good morning to the respected Babaji, Madam Santosh, Honorable Principal Madam, teachers and my dear friends. My name is Gurpreet. I study in class 9. I would like to speak in front of you on this Republic Day. I am very grateful to my class teacher
for giving me such a great opportunity to deliver a speech on Republic Day of India. My dear friends, we celebrate this national event every year to remember and pay respect to the Indian Constitution. It is celebrated in all schools and colleges by the students and teachers. However, also celebrated at government offices and other institutions of the state all over the India. A main celebration takes place in the national capital, New Delhi, at Rajpath, India Gate, before the President of India and chief guests from another country. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. However, we adopted on 26 January 1950 by the Constituent Assembly. On 26 January, India was declared Purna Swaraj by the Indian National Congress in 1930. That's why 26 January was chosen to bring the Constitution into force. Our Constitution assures the citizens of India about justice, liberty and equality among them. This time we are celebrating 70th Republic Day of India. Our Indian Constitution was drafted by the Assembly. It took around 3 years to be written. A drafted committee was set up by the Constituent Assembly on 29 August 1947 to draft the Constitution under the chairmanship of Dr. Bhimji Rao Ambedkar. Some important figures of the drafting committee were Dr. Bhimji Rao Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Maulana Abul Kalam Azad. More than 30 members of the total drafting committee were from scheduled class. Some important women members of the committee were Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, etc. Constitution of India gives rights to its citizens to select their own government. I would like to speak in my last word. Every citizen of India is equal in the eyes of law, and no one has to suffer because of religion, creed, caste, color and race. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Gurpreet.
Now, I would like to inform you about Dr. Bhimji Rao Ambedkar's contribution in building the Constitution of India. Dr. Bhimji Rao Ambedkar was appointed as the chairman of the Constitution Drafting Committee on August 29, 1947. He believed that the gap between different classes was important to equalize. He had a big hand in framing our Constitution. That's why he is known as the father of the Constitution. Moving on, now I would like to call Dhruvman, Krishanjot, Ranveer and Jasmine from UKG class to perform a graceful dance on the song Desha Veer Jawano Ka. Thank you, Monica, for singing such a beautiful song. All of you. Tiranta mera ajanta lehla surata hai pittu hai surata hai. Thank you. बच्चे हैं साथ तुम्हारे कच्चे हैं हम भी लड़ने जाएंगे चीले गोली खाएंगे में जाएंगे मिट जाएंगे देश की शान बढ़ाएंगे
अशोक which I did in third class. मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ song पेश करने जा रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तन तन गुजरी प्यारी माँ सदा जली सत्कारी माँ पति धर्म तो वार गई श्री डुबती हिंद नो तार गई श्री पुत्र गुरु गोविंद सिंह प्यारा वंश वारिया जिसने कारा निक्के निक्के बहादुर पोते कंध विच गए खलारे पोते जान कर्म दे लेके लागे यस दोवे शहीदी पागे वड्डे पोते अजीत जुझार विच करके मारो मार होगी पोते तो कुर्बान आप व्यस्त के दे गई जान गुजरी मादा ना कोई करनी होण न दित्ती कर मदियानी गुजरी मादा ना कोई करनी होण न दित्ती कर मदियानी। थैंक यू। welcome our respected Babaji, Madam Santosh, our worthy guests
from UK and other various countries. We are very lucky that we have been given an opportunity to celebrate 70th Republic Day. This is what we call freedom actually, that we have the freedom to sit together and to enjoy all together in our own way. So this is the 70th Republic Day, and this day only is being celebrated as our constitution was put forward, and we were given a chance to look into and to enjoy our rights. Whatever rights have been given to us, we need to follow them, but remaining in limits. So once again, I welcome all our worthy guests, and right now I would like to invite Madam Santosh on the stage to just share a few ideas and views with us, and to put some light on the life of Dr. Bhim Rao Ambedkar. I would like to invite ma'am first on the stage. Please welcome ma'am on the stage. ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਪੀਰ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨ ਭੋਪਰਾ ਫਰੋਮ UK, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। बीबी मनजिंदर कौर जी and her family, and Mr. Yuvraj Singh ji from Italy, from New Zealand, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ। and Sardar Kulveer Singh ji Sarpanch, Mohinder Pral from Italy, and Kuldeep ji, Mr. P.K. Clare, film director, Mr. Gurpreet Singh, and Rajkumar, and Pradeep Raja ji, and साड़ी क्रांति टीवी की पूरी टीम, और चेतना चंदन तो मिस्टर प्रदीप राजा, साढ़े बहुत ही रिस्पेक्टेड एडवोकेट पंकज जी, और मिस्टर कमल तल्लन जी, और जिन्हें भी साढ़े सत्कार जो पहुंचे ने, मैडम प्रिंसिपल जितेंद्र कौर जी, पूरा स्टाफ, एंड प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही इतिहासिक दिन है। मैं सब तो पहला श्री चरण भोपरा जी को रिक्वेस्ट करांगी कि स्टेज से आओ और बच्चों को आज के दिन के बारे थोड़ा ब्रीफ करो और अपनी ब्लेसिंग्स बच्चों। श्री चरण भोपरा जी जिन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रब्बी गुरु रविदास जी महाराज ने एक फिल्म तैयार की है, और वो बहुत ही जल्दी इतने इंडिया के लॉन्च होने जा रही है, और सारे सिनेमा घरों में सानू देखने को मिलेगा। जहाँ मिले सबन तो अन्न छोट बड़े सब रहे, रविदास रहे प्रसन्न, संता महात्मा ने शतक शाह हेठ, और बाहरों आए गेस्ट और सारे बच्चों, तुम अज रिपब्लिक डे मना रहे हो, आज बहुत ही खुशी का न्यारा है। सब तो पहला दास आप सब नू इस रिपब्लिक डे की बहुत बहुत लख लख बधाई दिता है, और इसके नाल ही आप जय करते वाहिगुरू का खालसा जय भीम जय भारत कहता है। अज जो इस रिपब्लिक डे से गणतंत्र दिवस से जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की है, उन्होंने सारे ही रंग दिखाए हैं, धार्मिक रंग दिखाए हैं, देशभक्ति के रंग दिखाए हैं, कल्चरल रंग दिखाए हैं। तो ये देख के दास बहुत ही इंप्रेस होया है, और दास सारी ही मैनेजमेंट को ये बधाई देना चाहता है कि जिन्होंने ये बच्चे तैयार किए हैं, और ये बच्चे तैयार किए हम इस तरह ही बच्चे तैयार होंगे तो ये अगे जाके जिंदगी में बहुत बहुत मन्ना मार सकते हैं। आप जिस तरह दसा है कि स्टेट सेक्रेटरी साहब मैडम संतोष जी ने कि ये जो 26 जनवरी है ये क्यों मनाई जाती है। ये 26 जनवरी जो 1950 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा थी, इस दिन ये जो संविधान लागू होया थी, इस संविधान लागू होने के नाल सानू निमाणियां नूं मान और निताणियां नूं स्थान मिलिया है। उन्होंने सब नूं ही समानता दी है,
और सबना जिस तरह कि पहला वोट का अधिकार नहीं सी हुंदा, साडी तां गिनती ही नहीं सी किसी विच आउंदी और उन्होंने सानू सारे अधिकार लैके दिते हैं और असीं जिन्ना भी उन्हां दा धन्नवाद कर सके उन्ना ही थोड़ा है। उन्होंने सानू जो मैसेज दिता है, सानू कहा है कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो और इकट्ठे होवो और इस तो भी ज्यादा उन्होंने ये कहा कि अपनी सोच बदलो। पहला तो ही अपनी सोच जी उच्ची ते सुची रखो, बचपन तो ही जिदा बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चों के दिमाग ये होना चाहिए है कि असी अगे जाके देश की बागडोर संभालनी है, किसी प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी राष्ट्रपति बनना है, किसी ने कोई औहदा संभालना है, किसी ने कोई औहदा संभालना है, IAS अफसर बनना है और बड़े बड़े अफसर बनना है। ये सोच लैके चलना है, ये सोच लैके तुम चलोगे तो ये सोच के नाल ही तुम बड़े होवोगे। तो सारी ही मैनेजमेंट में और बाबा जी को मैं इस दिन की और जो बच्चे ये तैयार किए हैं जिस मेहनत के नाल वो मैं इन्होंने साउंड कराइना है। और इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके नाल एक खुशी की खबर साझी करना चाहता हाँ कि दास ने और दास की समुची टीम ने गोपा राय प्रोडक्शन हेठ एक फिल्म सतगुरु दास जी महाराज के जीवन संबंधी बनाई है। एक ऐतिहासिक फिल्म है जो कि इतिहास के पहली बारी फीचर फिल्म बनी है। इस फिल्म का नाम रत्ती नूर गुरु रविदास है और ये फिल्म सतगुरु दास जी की कृपा के नाल संता महात्मा ने जीवा के नाल 8 फरवरी 2019 को थिएटरों के लग रही है। और ये फिल्म बनाने सानू सारी समुची टीम को 7 साल लगे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर PK कलेर जी बैठे हैं और मुंबई तो कुलदीप परमार जी कैमरामैन जी और बड़े ही सुलझे हुए विद्वान हैं वो सारे कार बैठे हैं और मीडिया का संबंधित हैं प्रदीप राजा जी वो साडे नाल आए हैं। तो इस समुची टीम ने 7 साल की मेहनत तो बाद अभी इतने तक पहुंचे हैं कि 7 साल की मेहनत तो बाद सानू 3 अक्तूबर 2018 को बॉम्बे तो सेंसर सर्टिफिकेट मिला है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਹਿਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ और उन्होंने बेनती की कि महाराज सानू आशीर्वाद दो और सानू इस फिल्म के बारे सानू कोई सर्टिफिकेट दो, कोई रिकमेंडेशन लैटर दो। और इन्होंने कहा कि ये फिल्म असी पहले देखांगे और देख के ही असी ये जो रिकमेंडेशन लैटर है जो कि थोड़े सपोर्टिंग लैटर है जो कि सर्टिफिकेट असी दे सकते हैं। इन्होंने वो फिल्म देख के और जिन्हें भी साधु संत सोसाइटी के मैंबर सन उन्होंने ये दिखा के फिर सानू इन्होंने जो सर्टिफिकेट सी वो दिता। तो संतां दा और साधु संत सोसाइटी का सारी का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। और इस सर्टिफिकेट लैन तो बाद असी सेंस सोसाइटी लैन लई बॉम्बे असी जो जो अप्लाई किया तो उन्होंने साढ़े से कुछ ऑब्जेक्शन लाए कि जो इतिहास है तुसीं पेश किया है इस फिल्म के कि वो असी सुनिया नहीं है, असी रिकमेंड नहीं कर सकता। कि मैं मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हाँ कि उन्होंने कहा कि जो मीरा है वो असी पहला तो सुनते आए हैं कि ये जो कृष्ण की सेवक है ये सतगुरु रविदास की सेवक नहीं है। फिर उन्होंने गोरखनाथ के बारे कहा, फिर बीबी भानुमती के बारे और उन्होंने जिन्नियां भी साखियां सीगियां उन्होंने प्रूफ लैने कहा। तो असी बड़ी मेहनत के नाल जिन्हां सतगुरु रविदास जी महाराज जीवन से PhD कीतियां सन उन्होंने लिखता लिखिया। तो अदास ने एक राइटर होने के नाते इतिहास पढ़िया सी, इतिहास पढ़ के उन्होंने पेश किया। फिर पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके असी उन्होंने पेश किया। फिर NOC की जरूरत थी जो असी फिल्म के हाथी घोड़े या होर जानवर वरते सन उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सानू चाहिए सी। वो जो कि तमिलनाडु चेन्नई तो मिलना सी वो बारे सानू बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो फिर असी उत्थे बाई एयर उत्थे गए उन्होंने सारी गलबात की। उन्होंने सानू सारिया गाइडलाइन दित्तियां कि आ गाइडलाइन सन आ सारिया जो रिक्वायरमेंट सन ये सानू फुलफिल करनियां पैणगियां। वो असी सारिया फुलफिल कीतियां। फिर उन्होंने सानू वो NOC का जो सर्टिफिकेट सी वो दिता। और इस फिल्म के मैं दसना चाहता हाँ
कि बहुत सानू संगत पुछती है कि इस फिल्म के विच किसी गुरु रविदास जी महाराज का रोल तो नहीं किया, और मैं दसना चाहता कि इस फिल्म के विच गुरु रविदास जी महाराज का रोल किसी नहीं किया, लेकिन जो हीरो हैं जो उन्होंने छतर छाया का सतगुरु रविदास जी मारे हैं, उन्होंने छतर छाया हेठ भी ये फिल्म बनी है, और वो इन्नी वधिया डायरेक्शन की गई है कि वो सानू फिल्म देख के ही पता लगेगा। और इस फिल्म के विच जो चंगे चंगे असी गीतकार लाए हैं, जो सिंगर लाए हैं, सिंगर जिदा 7 सिंगर असी लाए हैं, हंसराज हंस जी, साबर कोटी जी, कलेरकांत जी, सुरेश कुमार जी, रंजीत राणा जी और प्रिंस सुखदेव जी, ये टॉप के सिंगर असी लाए हैं। और संगीत जो लिया है ये बहुत असी अच्छे संगीतकार का संगीत है, कलजीत का संगीत, कलजीत जी का संगीत है जो कि बड़े मशहूर हैं, जो कि दूर तक तुम आम तुम उन्होंने देखते हो। और इसी तरह ही जो पिछवाती संगीत है जो जिसको बैकग्राउंड म्यूजिक कहते हैं, ये उपर है कलाकार अमदाद अली का है। और इस जो लिखण वाले गीत हैं, गीतकार हैं, वो चंगे चंगे पंजाब के जो मशहूर गीतकार हैं, जैसे चल गराया वाला जी उन्होंने गीत हैं, और रत्तू रंधावा जी और राजस्थान शीला जी बंगिया वाले और रंजीत सिंह राणा जी यूके तो जो कि बड़े विद्वान हैं, संतां दे नाल भी उन्होंने बड़ा प्यार है उन्होंने भी हैं। और दास के चंद बुकर है, दास के 3 गीत लिखे हुए हैं। तो ये जो फिल्म है बहुत ही असी मेहनत के नाल ये बनाई है। तो दास संतां महात्मा के और सारे जो NRI भरा हैं जो बाहरों हैं उन्होंने कहना बेनती करता है कि इस फिल्म को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बच्चों भी दिखा लो, आप ही देखो और लोगों को ये फिल्म देखने लिए प्रेरित करो, क्योंकि ये एक इतिहास है, ये इतिहास की फिल्म है और बच्चों को साडियां को पता लगेगा कि सतगुरु रविदास जी महाराज का इतिहास की है। क्योंकि अजकल का जो जमाना है ये मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया। क्योंकि मीडिया के थ्रू जो थोड़ी गल है सारी वर्ल्ड में चलती है और मीडिया थ्रू ही जो बच्चे हैं जो जो होर हैं वो बहुत छेती जो गल पिक करते हैं और तो सीखते हैं। तो इस करके मैं बेनती करांगा कि संतां महात्मा के चैनलों में सारी महंगी महंगे चैनलों में समूह सत्संग के चैनलों से ये फिल्म को जरूर देखो और दाता को हल्ला चीज दो। अगर ये फिल्म कामयाब होगी तो होर भी कोई इस तो वध जो चंगे विद्वान आके इस फिल्म सतगुरु रविदास जी महाराज के जीवन को फिल्माओगे और जो सतगुरु रविदास जी महाराज का इतिहास जो सामने आएगा। क्योंकि अज तो पहला अज तक मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरी जानकारी के हिसाब से अज तक कोई सतगुरु रविदास जी के जीवन संबंधी पंजाबी कोई फिल्म भी फिल्म नहीं लगी। तो ये फिल्म है, इसको अंगारा दो। जय करते वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। जय भीम जय के प्यारे बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। मैं बाबा जी बारे 2 शब्द ही कहूँगा। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मुबारक दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की। मैं फिल्म बारे कुछ शब्द कहना चाहता। ये फिल्म पंजाबी की भी ऑल वर्ल्ड की पहली फिल्म है जी गुरु महाराज के उपर बनाई गई है। जद गोपा राय जी इसके हकदार ने। मैनू नहीं लग्या भी अज तक इस सबजैक्ट के उत्ते कोई काम होया होवे। फिल्म इंडस्ट्री पहला फिल्मां मीरा को लैके काफ़ी बनाई गई ने। तुसीं आप लोगों ने देखना हेमा मालिनी ने भी वो काम किया, पर टोटली होली स्टोरी गुरु महाराज को ध्यान च रख के टोटल ऑल सबजैक्ट महाराज के उपर बनाया गया है। ये जो फिल्म बन लगी सी एक थोड़ी जी मैं कलेसा साझी कर रहा डायरेक्टर साहब इन्होंने जो मैंने उत्थे बॉम्बे तो बुलाया कि मैंने कहते टेलीफिल्म करनी है। मैंने शौक लगे मैं टेलीफिल्म करनी भाई मैं जो इन्होंने मैं सबजैक्ट दसो मैं सबजैक्ट की थोड़ा जो मैं इन्होंने सबजैक्ट सुनिया मैंने उस वे कहा नहीं टैली नहीं तू करेगा, तू फीचर फिल्म कर, तू बड़ा हो। मैं मैनेजमेंट को एक गुजारिश कर रहा
कि इस फिल्म ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। प्यारे बच्चों, अज का दिन असी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं SGRD पब्लिक स्कूल चूड़ाली विखे। जो स्कूल गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा लेके चलाया, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अन पाओ पाओ ना दसे, उन्होंने जो विचारधारा थी उन्होंने लैके संतां महापुरुषों द्वारा एक बहुत ही बड़ा उपराला किया और जिहदे 7 एकड़ दे विच ये तुहाडी बिल्डिंग बनी है और CBSE थानू मान्यता मिल चुकी है और ये बहुत ही प्यारे बच्चे इस स्कूल के विच महापुरुषों का आशीर्वाद लेके पढ़ रहे हैं। मैं ये दसना चाहूँगी कि जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि साडा देश आज़ाद होने तो बाद चाहे कोई देश आज़ाद हो, चाहे कोई संस्था बन रही है, वह कॉन्स्टिट्यूशन होंदा, वह कोई संविधान कोई विधान होंदा है जिहदा लिखण दे लई बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने ये साडा जो भारत का संविधान देश का सब तो उत्तम संविधान बनाया और ये जो 26 जनवरी 1950 में लागू होया, इनू बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सन। बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साडे सब तो पढ़े लिखे विद्वान इंसान सन। उन्होंने भारत का संविधान लिखण तो पहले दुनिया के सारे संविधानों को पढ़िया, साडे जिन्ने धार्मिक ग्रंथ सन उन्होंने पढ़िया, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ जिहड़े अलग अलग कम्यूनिटी को अलग अलग जथेबंदियों को बिलोंग करते हैं, चाहे कुरान, चाहे बाइबल, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब, चाहे रामायण, चाहे गीता, कोई भी ग्रंथ होए उन्होंने उन्होंने ग्रंथों को पढ़िया। परंतु बाद उन्होंने सोचा कि सब तो उत्तम ग्रंथ संत जी वाला ग्रंथ जोड़ा है, उन्होंने साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने उत्तम ग्रंथ का दर्जा दिता कि जिहदे विच ऊंच नीच जात पात का खत्म किया गया तो सिर्फ सच की गल की गई। उन्होंने भारत का संविधान लिखते समय एक प्रण किया कि मैं देश के जो जात पात है, ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, ना बराबरता है, उन्होंने खत्म करना है। जो कानूनी तौर पर थोड़े को हक नहीं सन, गुलाम देश के अज साडे जो देश आजाद होया उस तो बाद तुहानू वो ग्रंथ उन्होंने तुहाडे सपुर्द किया जिहदे विच इक्वलिटी का प्रतीक है। अज अगर मैं कहना चाहवां तो कोई अतकथनी नहीं होएगी कि साडा अगर कोई ग्रंथ है जे असीं किसी को पूजिए तो साडा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, सानू उन्होंने पूजना चाहिए है, सानू उसका सत्कार करना चाहिए है, क्योंकि वो ग्रंथ जिन्हें सानू जीवन दिता। और मैं अपनी भैनों को यह दसना चाहूँगी कि वह नारी वर्ग जिन्हों पैर की जुत्ती समझा जाता सी और उन्होंने सिर का ताज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के बनाया। अज मेरिया भैन पढ़ रही हैं और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे हैं। एक किहदा दिता हुआ अधिकार है बच्चों? बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी का। इस तो पहला जो ग्रंथ जो संविधान साडे देश में लागू सी उहदे लड़कियों को ना तो पढ़ने का अधिकार सी, ना उन्होंने वोट पाने का अधिकार सी, ना उन्होंने मर्दों के बराबर बैठने का अधिकार सी और सती प्रथा का समा सी कि अगर लड़की का हसबैंड घर वाली डेथ हो जाती है तो लड़की को जिंदा वो जला दिता जाता सी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनू खत्म किया। अगर लड़कियों को पढ़ने का लिए सब तो पहला बीड़ा चुकया माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने। महात्मा ज्योतिराव फूले जी की बहुत छोटी आयु के शादी हो गई और माता सावित्रीबाई फूले उस टाइम 9 साल के सन। 9 साल की आयु के माता सावित्रीबाई फूले जी शादी हो गई थी। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। पढ़ाने तो बाद लड़कियों को पढ़ाने वास्ते, लड़कियों को एजुकेट करने वास्ते एक स्कूल खोलिया जिथे लड़कियों की जो उन्होंने विद्या दी गई और उन्होंने अनाथ लड़कियां अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया। लड़कियों को अपना आश्रम खोल दिता कि जड़ियां लड़कियां अनाथ सन लवारे सन उन्होंने अपने आश्रम च लिया। आश्रम च लिया उन्होंने पर पोषण किया और उन्होंने पढ़ाया। पढ़ाने तो बाद उन्होंने अपनी अपनी नौकरियों के लिए उन्होंने काबिल बनाया। और अगर मैं कहना चाहवा कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने अपनी पत्नी को माता सावित्रीबाई फूले जी को साडे देश की सब
सब तो पहली पढ़ी लिखी औरत और हेडमिस्ट्रेस बनी, अध्यापिका बनी। सब तो पहली औरत कौन सी? माता सुखदेव फुले जी साडे देश की। और उस तो बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने फूले साहब की जो विचारधारा लेके जो भारत का देश का जो संविधान बनाया, वो तो साडा कोई जवाब नहीं है कि आज असी एक माला के मोतियों के विच एक माला के मोतियों के बराबर इको लेवल के बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर कानून प्रधानमंत्री वास्ते और राष्ट्रपति वास्ते बने तो एक साडे जो वर्कर है, जो लेबर करता है, उन्होंने बराबर का कानून है। अगर फांसी की सजा एक लेबर के बंदे को है तो फांसी की सजा बराबर राष्ट्रपति को भी हो सकती है अगर वो अपराध करता है। एवं जो साडा संविधान मैं सल्यूट करती हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी महाराज को कि जिन्होंने सानू जीवन जुक्ति दी है, जीवन जीवन की दात दी है। वो भी समा सी कि साडे कोल लड़कियां औरत को वोट का अधिकार नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं। अज मैं स्टेज पर खड़ी हाँ तुहाडे सामने, एक यही देन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की देन है। अगर भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ना लिखा होंदा तो शायद अज मैं तुहाडे सामने इस मंच से ना खड़ी होंदी, ना मैं गल कर सकती होंदी। और मेरी जो नन्हे बच्चियां छोटियां छोटियां बच्चियां लड़कियां के बराबर बैठियां हैं, यह भी शायद लोड़ इस कतार में ना बैठियां होंदियां। सो मैं अपील करती हाँ कि आओ आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी महाराज को पढ़िए, उन्होंने विचारधारा को पढ़िए, विचारधारा को पढ़ के असी सोचिए कि असी अगे की करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सानू जीवन दान दिता है और असी अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस जीवन की जो दात है, उनका जो भविष्य है, आपने उन्होंने बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कुछ समझता सी, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। तुसी पढ़ जाओगे ज्ञानवान हो जाओगे, तुहानू कोई गुमराह नहीं कर सकता। अज साडे लॉर्ड बैठे ने मिस्टर पंकज जी, ये लॉर्ड किन्हां दी बदौलत बैठे ने? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिते हुए संविधान की बदौलत बैठे हैं। अज असीं इन्हां नूं कानूनी सलाह लेंदे हैं और सलाह दी कि सानू कानूनी कोई सानू सलाह नहीं दिंदा। अज असीं सल्यूट करते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी नूं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने सानू पढ़ने वास्ते इस करके नहीं प्रेरिया कि असीं पढ़ जावांगे ते नौकरियां कर लवांगे ते तनख्वाह लैके असीं अपनी जिंदगी को बसर करांगे। उन्होंने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। असीं पढ़े हैं, नौकरियां लगे हैं और असीं समाज को भी साडा देण दा, जो साडे पीछे गरीब परिवार हैं, असीं उन्हां दी उंगली फड़नी है, असीं उन्हां दी बांह फड़नी है तां जो वो भी साडे बराबर से पहुंच जाए। लेकिन आज बड़ा अफसोस में कहना पै रहा है कि एक बंदा नौकरी लग जाता है और लगता है रिजर्वेशन के माध्यम तो आज पोलिटिकल रिजर्वेशन आज साडे MLA MP ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए हैं। किसी ने जनरल तौर पर इन्हों कोई अधिकार कोई इन्होंने टिकट नहीं दी। अगर आज इन्हों की रिजर्वेशन खत्म हो जाती है तो इन्हों किसी ने भी पूछना नहीं है, किसी ने कोई टिकट नहीं देनी, इन्होंने किसी MLA MP नहीं बन देना। आज ये बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह ना। अज मैनू बड़े दुख ना कहना पै रहा है कि साडे समाज के जिहड़े स्कूल हैं उन्होंने प्रचार ना करके साडे समाज के लोग जिन्होंने अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिते हैं, लेकिन वो प्रचार कहना करते हैं, वो मनुवादी सोच का प्रचार करते हैं। जिहड़े स्कूल साडे बच्चों को गुमराह करने वास्ते खोले जा रहे हैं, उन्होंने स्कूलों का प्रचार किया जा रहा है, अपने स्कूलों का प्रचार नहीं किया जा रहा। इन्ना वड्डा स्कूल जिन्होंने संत महापुरुष चला रहे हो और उस स्कूल का प्रचार अज वो लोगों को करने में शर्म आती है कि साडे दलितां दा गरीबां दा स्कूल है। और वो अज जिहड़े स्कूल साडे स्कूलों को काउंटर करने वास्ते, साडे बच्चों को ना पढ़ाने वास्ते, गुमराह करने वास्ते स्कूल बनाए गए हैं, उन स्कूलों का प्रचार हो रहा है। सो बच्चों आपने आज इस दिन से पढ़ करना है कि आप चंगे नागरिक बनना है, चंगे इंसान बनना है, किसी ने धोखा नहीं करना, किसी ने ठगी नहीं करनी, किसी ने जुर्म नहीं करना, हक की कमाई खानी है, हक का काम करना है। और अगर तुम सही रास्ते चलोगे तो तुम आने वाले अपनी जो जनरेशन है साढ़े तो बाद जो पीढ़ी आएगी वो भी हक सच से चलेगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हक सच चलने से सानू उपदेश दिता। गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को हम शोध बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। अगर आज असी कृपान फड़न का हक है ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान कर दिया। वो समा सी कि असी कृपान नहीं सकते, साढ़े सिख भरा बैठे ने मेरे भरा और सिखा कृपान फड़न का हक नहीं दिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। वो समा सी कि कृपान को रख नहीं सकते थे, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है।
सो उन्होंने कुर्बानी को आप हमेशा याद करिए, उन्होंने दिते हुए रस्ते से, उन्होंने दसे हुए मार्ग से आप चलिए, क्योंकि जे असीं अपना मार्ग अपना रास्ता भुल गए भटक गए तो साडा रास्ता कोई होर हो गया तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चों सानू दोबारा गुलाम बनना ना पै जाए। असीं ये देश की जो आज़ादी है इनू बरकरार रखना है, जो इंसान की आज़ादी है उन्होंने भी अपने बरकरार रखना है और अच्छे इंसान बनना है। अच्छे इंसान बनेंगे तो महापुरुषों का जो है असी इन्हों की जो सोच है असी उन्होंने भी अगे दुनिया में लिजा सकेंगे। इन्होंने शब्दों के नाल मैं अज के गणतंत्र दिवस से सारे बच्चों को, स्कूल के स्टाफ साहबान को, साडे मैडम प्रिंसीपल और सारे जिन्हें भी आए गेस्ट हैं और संत महापुरुष संत निर्मलदास जी महाराज सारे कोटन कोटन मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और इस दिन के शुभ मुबारक देती हूँ। जय भीम जय हर सो हीरा कहे आन की ते नर दोजक सत भाखै। परम सत्कारयोग साडे बाहरों आए हुए मेहमान इंग्लैंड तो, इटली तो, जर्मन तो और न्यूजीलैंड तो, जिन्हां दा इस संस्था के नाल और इस स्कूल के नाल गहरा प्यार है। असी कोटन कोट धन्यवाद करते हैं सबका और खास करके मीडिया का। असी इत्थे बैठे हाँ पर विदेशों के सारे वर्ल्ड के देख रहे हैं और सानू सारे लोग देख रहे हैं। असी उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं जिहड़े इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे अमेरिका, कनेडा, न्यूजीलैंड, सारे वर्ल्ड के ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दर्शक जितने भी है उन्होंने असीं धन्यवाद करते हैं। अज 26 जनवरी का जो प्रोग्राम बड़े ही प्यार के नाल और बड़े डिसिपलिन के नाल सारे बच्चों ने किया और साडे इस स्कूल के बच्चे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। असी इन्हां दी अरदास करते हैं गुरु पातशाह इन्हां ते कृपा करे और इत्थे दा स्टाफ जो है उन्हां दा भी असी कोट कोट धन्यवाद करते हैं जो इतनी मेहनत के नाल इतने मेहनत करके बच्चों को उस मार्ग की जो दिती हुई सानू बाणी है, माधो अविद्या है कीन विवेक दीप मलीन, जो उच्ची विद्या आप जी दे रहे हो ये गुरु पातशाह जी की महान आशीर्वाद है। और मैं देख रहा सी विदेशों के जो नौजवान बच्चे हैं पढ़ने वास्ते जा रहे हैं और ये जो इस स्कूल की विद्या है ये सारे ही भारत के विच जो स्कूल है CBSE उन्होंने नाल इस स्कूल जो बॉम्बे, कलकत्ते और दिल्ली विच विद्या पढ़ाई जाती है वही जो विद्या है साडे इस स्कूल दे विच पढ़ाई जाती। तुसीं देखिया कि बच्चे इंग्लिश के विच सारी गलबात कर रहे हैं और जितना भी भाषण दिता जो कुछ भी किया सारा इंग्लिश के विच और बच्चे सारे इंग्लिश समझ रहे हैं। इस गल की बहुत खुशी विदेशों के विच होंदी जिस वेले बच्चे साडे स्टेज के उपर आके इंग्लिश बोलते हैं और वो इंग्लिश जो है विदेशों के जिस वेले सुनते हो ताड़ियां मारते कि साडे बच्चे इस स्कूल के श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल के बच्चे इंग्लिश के सारा कार्य कर रहे हैं और सारा ही भाषण दे रहे हैं। तो सानू बड़ी खुशी होती है उत्थे बैठिया कि देखो साडे उस स्कूल का नाम और उस स्कूल का स्टाफ और स्कूल के बच्चे जिस वेले वो लोग देखते हैं उन्होंने खुशी होती कि साडा समाज और साडा जितना भी भारत के विच साडे बच्चों को विद्या दी जाती है वो बहुत उच्ची सुची है। तो असी नाल नाल अध्यात्मक भी बनना और परमार्थी भी बनना और स्वार्थ भी करना, सारा कुछ करना। तो उदों तक करांगे जो तक साडे कोल ये विद्या होगी। असी बच्चों को फिर बेनती करांगे कि लगन के नाल पढ़ना। जिन्हां बच्चों के कोल कोई किताब नहीं या कोई होर कोई साधन नहीं पढ़ने का वो अपने प्रिंसीपल साहब को दस सकते हैं तो संस्था वालों सारा कुछ उन्होंने मिलेगा। तो जितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं
ये सारे ही गुरु रविदास महाराज जी के उस मालिक की ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ आशीर्वाद के नाल सारी विद्या हासिल कर रहे हैं। तो असी उम्मीद करते हैं कि अगले सालों के विच असी इसको कॉलेज बना सकीए और होर इसकी डिवेलपमेंट होवे और असी गुरु पातशाह के चरणों में यो ही बेनती करांगे। और मेरे नाल इंग्लैंड तो आए चरण सिंह जी गोपार आए, जिन्होंने 7 साल अपनी मेहनत करके गुरु रविदास महाराज जी का वो प्रचार वो जीवन फिल्म द्वारा दिखाया और बड़ी मेहनत की। कई बार लोगों ने इतने काम करना बड़ा औखा, सरकार के घर या किसी को काम कराना बड़ा औखा। आप बंदा सारा काम कर सकता, जिस वे दूसरे को कराना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। असी 2-3 साल तो इन्हों देख रहे हैं कि इस फिल्म लिए कितना जतन किया इन्होंने। अज मालिक की कृपा हुई है, मालिक ने इन्होंने मेहर की। जिस तरह सानू खुशी हुई सी जिस वे CBSE इस स्कूल को मानता प्राप्त हुई दिल्ली तो कितनी खुशी थी अपने अंदर। एक बार जयकारा बोलो, बोले सोल भय। खुशी अज सानू हुई है कि जिन्होंने अज फिल्म का यह मान प्राप्त होया। असी आस करते हैं कि अगे वास्ते भी, क्योंकि चरण सिंह गोपार आए अज तो नहीं मैनू मिल रहा है 1990 तो असी इन्हों के नाल इंग्लैंड में जाके जिस वे स्टेज के उपर यूके सभा और सारिया गुरुद्वारे दी सभावां इकट्ठियां होंदियां सी और गुरु घर के कीर्तन होना। तो सब तो पहला इन्होंने कीर्तन करना और बड़िया किताबां लिखियां। साहिब पत्रकार निकलती है वो इन्हों का लेख आउंदा, हर पत्रकार इन्हों का लेख आउंदा और बड़िया इन्होंने किताबां लिखियां और किताबां के नाल नाल गुरु महाराज का जीवन लिखिया। अज फिल्म तैयार की है। असीं फिर उम्मीद करांगे कि आपां इत्थे रुकना नहीं, साडी मंजिल नहीं रुकण दी, असीं अगे चलना। तो इसनूं वध तो वध सारे महापुरुषों वालों और सारे ही समाज सेवी और सारे बच्चों वालों असीं यही अरदास करांगे गुरु पातशाह सानू इस काम दे विच कामयाब करे। रब्बी नूर गुरु रविदास महाराज जी उन्हां दे नाम ते फिल्म बनी है। अपने दीपक आप बनो। एजुकेशन